and matter. By the 19th century, it was supposed that the radiation or light nature is in the form of wave, and there were number of experiments which proved that radiation is the nature of the radiation is wave. For example, linear propagation, reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, all these phenomena proved the wave nature of light or radiation. But at the last of the starting of the 20th century, when Hertz give the result of the photoelectric emission, and he showed that when light is incident on a surface of a metal, the say current or say electrons emit, which is called photoelectric emission. After photoelectric emission, the wave nature, now there question arises upon the nature of the light or radiation. ये जो नेचर है हमारा वेव का, इसके ऊपर भी प्रश्न उठा कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. Now let us study about this photoelectric emission. What is photoelectric emission? Photoelectric emission, we know that in any metal there are a number of free electrons moving inside the metal, but no electron can leave this metal. If any electron tries to escape from the surface of the metal, then it becomes positive, and a attractive force which is known as stirring force attracts the electron, again pulls back in the metal. तो ये जो मेटल जैसे इसके अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा, फिर इसको खींच लेगा. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनसाइड द मेटल बट इट कैन नॉट कम आउट ऑफ द मेटल बिकॉज देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स. टू ओवरकम दिस अट्रैक्टिव फोर्स और से ये सरफेस पोटेंशियल बैरियर, इट रिक्वायर्स ए मिनिमम एनर्जी. If that minimum energy is given to the electron can escape from this surface. Now to remove the electron or to emit the electrons, we have to give a minimum amount of energy. That minimum amount of energy which requires any metal is known as the work function of that metal, and it is different for different metals. तो जो minimum amount of energy required to emit electron from the metal surface is known as the work function. तो जो work function है वो अलग अलग metals के लिए अलग अलग रहता है. For example, for cesium it is a very small amount of energy, 2.14 electron volt, but for the platinum surface it is very difficult to emit the electron because it requires 5.65 electron volt energy. So the work function for different metals is different. These electrons can be emitted by different methods. That depends upon how we supply the energy to the metal. If we heat it, the electrons coming out from the surface are known as thermal electrons, because these electrons come out due to the thermal energy. Electrons are same, the free electrons inside the metal, लेकिन चूंकि गर्मी के कारण बाहर निकलते हैं इसलिए उनको हम थर्मल इलेक्ट्रॉन या उन्हीं को थर्माइन कहते हैं. When they come out from the surface due to the light, प्रकाश पड़ने पर अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उन्हें हम
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दिस प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted due to the effect of light from the metal surface, that is called photoelectric emission. And these electrons which emit due to the light are known as photoelectrons. The current flows due to these electrons is known photoelectric current. If these electrons are emitted due to a field, electric field, a very strong field is applied and that supplies the electrons energy to the electrons, and then those electrons are known as the field electrons. Other way is the secondary emission of electrons, when a fast moving electrons collides with the metal, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे के वो इमिट करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज हाउ वी सप्लाई द एनर्जी टू द मेटल, एंड ड्यू टू दैट एनर्जी इफ दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, अगर वर्क फंक्शन से कम है, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू इमिट द इलेक्ट्रॉन अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बट इफ द एनर्जी इज इक्वल टू द work function or more than the work function, then the electron emits from the surface of the metal. So now for this purpose, due to this for this photoelectric emission, number of experiments were performed by Helmholtz, Leonard and Hertz. That there is an experiment of Hertz and Leonard observation. This is a vacuum tube. This is a window, quartz window. Incident light, that is a ultraviolet light, falls here. This is cathode and this is anode, made of zinc. This is the connection. There is a battery. Once one is connected to 4 and 2 is connected to 3. One is connected to 4 and 2 is connected to 3. Then this is positive. This is connected to the positive pole. Anode is positive and cathode is negative. When the light is incident on this surface, the electrons emit, they are attracted towards the anode, and therefore the circuit is completed and the current flows in the circuit and there is a deflection in the ampere meter. So if light is stopped, there is no flow of current because there is no electrons, and therefore there is no flow of current in the circuit. The number of electrons which are coming from here to here, they depend upon the intensity of the light. If light intensity is increased, the number of electrons are increased. If intensity is less, the number of electrons is less. Number of electrons means the current, photoelectric current, the current flowing in this circuit due to these photoelectrons. There is a relation between light intensity and photoelectric current. As the light intensity increases, the photoelectric current increases. That is, photoelectric current or photoelectrons, number of photoelectrons are directly proportional to the intensity of incident light. Secondly, potential is applied between these anode and cathode. Anode and cathode, there is potential difference. Now if potential difference is fixed, then here also this is the relation between the current, photoelectric current and intensity of light.
If intensity of light increases, then the current increases. Again, intensity increases, current increases. But if the potential is reverse, that is, anode is given negative and cathode is given positive potential. It is negative potential, therefore the electrons are there is a force of repulsion between the electrons and this anode, and due to this force of repulsion the electrons are stopped. Very many of highest kinetic energy the electrons reach there, but as the potential difference between anode and cathode is increased, the maximum kinetic energy electrons are also stopped, that is, the photoelectric current becomes zero. This negative potential given to the anode, which stops the maximum kinetic energy electrons, or which make the current zero, is called cut-off potential or stopping potential, which is known as V0. So V0 is cut-off potential, or stopping potential. Cut-off potential or stopping potential. If we draw the curve between these photoelectric current and potential, we get like this. This is the cut-off potential. If we draw the curve between the maximum kinetic energy and the frequency, if change the light, that is their frequencies, as the frequencies are changed, the kinetic energy is also changed. But there is a frequency, a minimum frequency nu zero, which is known as threshold frequency. If the frequency is less than that, there is no flow of current. It means for photoelectric emission, a minimum frequency is required, and that minimum frequency is known as threshold frequency. तो जब भी इसके ऊपर लाइट डालते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी अगर घटाते जाएं, तो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी आती है मिनिमम के इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो जाएगा, लेकिन उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी, यानी दैट फ्रिक्वेंसी कैन फ्री द इलेक्ट्रॉन ओनली, वो उसको केवल सरफेस पर मुक्त कर सकती। तो दैट इज़ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी विच कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल, दैट इज़ नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं कि द मिनिमम फ्रिक्वेंसी विच कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। अब इससे कम का अगर हमने डाला, कम फ्रिक्वेंसी लाइट पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं हो पाएगा, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और अगर इसको हम वेवलेंथ में कहें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड देयरफॉर इन प्लेस ऑफ मिनिमम वी कैन राइट मैक्सिमम, बाकी रेस्ट इज सेम। यहाँ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी, द मैक्सिमम वेवलेंथ which can emit photoelectrons from metal surface, the minimum frequency which can emit photoelectron from the metal surface। तो ये डिफरेंस है।
हमने आपको बताया कि यदि हमने इसको उल्टा कर दिया, C जो इसका कैथोड है और जो उसका एनोड है, ये यहाँ कम्यूटेटर लगा है, हमने इसको जोड़ दिया 1 to 2 and 3 to 4, 1 से 2 को जोड़ा, 3 से 4 को जोड़ा, तो बिकॉज दिस इज कनेक्टेड, इसको हमने जोड़ दिया 3 से 4 को, तो ये जो इसका एनोड है ये इससे जुड़ जाएगा इसके निगेटिव से, और जब इसके निगेटिव से जुड़ जाएगा तो एनोड विल बिकम नेगेटिव एंड कैथोड विल बिकम पॉजिटिव, एंड व्हेन एनोड इज नेगेटिव तो इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसी स्थिति आएगी, धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते जाएं तो स्थिति ऐसी आएगी कि जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा अभी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट विल स्टॉप and that is known the stopping potential or cutoff potential। तो कट-ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इसके रिस्पेक्ट में हमने उसको दिया है नेगेटिव। विद रिस्पेक्ट टू कैथोड द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज विच स्टॉप्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, नेगेटिव वोल्टेज। विद रिस्पेक्ट टू कैथोड द नेगेटिव वोल्टेज which stops electrons from electrons have maximum kinetic energy to reach the anode। इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाता। जैसे द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग ऑफ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, जो बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी के होंगे, जब इसको आप नेगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो जो बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होंगे थोड़ी दूर के बाद ही लौट आएंगे। जो और काइनेटिक ज़्यादा ऊर्जा के होंगे वो आगे तक जाएंगे। थोड़ा और आपने इसको नेगेटिव किया तो ये और दूर तक जाएगा, और दूर तक जाएगा। कुछ एक ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे और इतनी काइनेटिक, इसकी हमने वोल्टेज लगा दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुँच पाया, देन देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो हमने नेगेटिव वोल्टेज लगाया है इस पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, उसी नेगेटिव वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। अब मान लीजिए ये V0 है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, EV0, क्योंकि ऊर्जा इक्वल टू होती है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो EV0 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द electrons। Therefore, the maximum kinetic energy of the electron is EV0। Laws of photoelectric emission। लेनर और मिल्टन ने जब स्टडी किया कि लाइट के पड़ने पर इसकी इंटेंसिटी के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद उन लोगों ने इस चीज़ों को उन्होंने ये लाज दिए। उन सब चीज़ों को देखने के बाद जो लेनार्ड थे और मिल्टन ने, लोगों ने ये 4 लाज दिए। पहला ला ये है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या, या कहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट भी उतनी ज़्यादा होगी। तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी लाइट जो पड़ती है उसकी इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी करंट उतनी ज़्यादा होगी। सेकंड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और थर्ड है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन ए पर्टिकुलर वैल्यू known as the threshold frequency, then no electron can be emitted। अगर एक फिक्स वैल्यू है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी प्रत्येक मेटल्स के लिए अलग अलग रहती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अगर कम फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो चाहे जितनी देर तक पड़ती रहे
नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होंगे। और लास्ट है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉल ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल के ऊपर लाइट के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। ऐसा नहीं कि लाइट पड़ी फिर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, इलेक्ट्रॉन्स को मिली और फिर इलेक्ट्रॉन निकलते। लाइट का पड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना एक साथ होता है। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉल ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो टाइम लैग, समय अंतराल नहीं है, टाइम का अंतर नहीं है। तो ये है हमारे जो लियोनार्डो और मिल्कान्स ने लॉज दिए। अब ये जो लॉज हैं इनको वेरीफाई आप वेव थ्योरी पर नहीं कर सकते। वेव थ्योरी के हिसाब से तो जो हमारा ये फर्स्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो इंटेंसिटी पर निर्भर हो, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी कम भी होगी तो लाइट आएगी, फिर वो पड़ेगी किसी भी मेटल पर, और मेटल पर पड़ने के बाद वो जितने भी एरिया में पड़ेगी उतने एरिया के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी और फिर धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं है, वो इस बात पर निर्भर है कितनी ऊर्जा आ रही है और कितने क्षेत्र पर पड़ रही है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर निर्भर नहीं करता कि किस फ्रिक्वेंसी का आ रहा है, प्रकाश तेज है कि प्रकाश की फ्रिक्वेंसी कम है, इस पर निर्भर ये नहीं करता। ये निर्भर करता है कि प्रकाश की मात्रा कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। तो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा या कम होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो ये तो प्रकाश के ज़्यादा क्षेत्रफल में पड़े और कभी प्रकाश पड़े तो भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर वेव थ्योरी को लें तो फिर फ्रिक्वेंसी का कोई सवाल नहीं है। लाइट पड़ रही है, थोड़ी देर तक पड़ेगी, इट विल टेक टाइम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेके निकल जाएगा, कभी कम एनर्जी लेके निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी, बट प्रैक्टिकली या बाई ऑब्जर्वेशंस जो है वो ये है कि जो एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी। तो जो वेव थ्योरी है वो इसको भी वेरीफाई नहीं कर पाती, इसको भी सिद्ध नहीं कर पाती। और तीसरा है इफ द फ्रिक्वेंसी इज लेस देन ए पर्टिकुलर वैल्यू। अगर वो नहीं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। वेव थ्योरी के हिसाब से तो अगर वेव्स आ रही हैं, पढ़ रही हैं, धीरे 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 इतना एनर्जी दे देंगी कि दैट एनर्जी विल बिकम मोर देन वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स फ्रिक्वेंसी हो, किसी भी फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो और वो खाली इतनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो थोड़ी देर में मिलेगा, ज़्यादा समय में मिलेगा, जब मिलेगा तब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर निश्चित फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी का लाइट पड़ती है किसी धातु पर तो दिन भर पड़े वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। और लास्ट है कि प्रकाश के पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में समय नहीं लगता। वेव थ्योरी के हिसाब से तो लाइट पड़ेगी, लाइट विल बी ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द होल एरिया, और फिर उस होल एरिया के इलेक्ट्रॉन्स जब लाइट को लेंगे और तब निकलेंगे। तो तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होगा, लाइट पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी, तब तो ट्रांसफ़र होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको वेरीफाई करने के लिए फिर एक दूसरा ही तरीका है। वो इस सिद्धांत पर, वेव थ्योरी पर प्रूव हमारा ये नहीं हो सकता। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है दैट इज नॉट प्रूव्ड ऑन दिस बेसिस। इसका मतलब जो अब तक ये माना गया था कि जो हमारी लाइट ही दैट इज वेव नेचर, वो जो 1873 तक के कंफर्म था, मैक्सवेल ने फिक्स कर दिया था कि बिल्कुल यही है, लोगों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि अब कोई और नियम बाकी नहीं रहा। सारे जितने भी फिनोमेना हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइट, तो सभी को वेव थ्योरी से हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जस्ट
आफ्टर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब इस प्रॉब्लम को सिद्ध करने के लिए मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि जब क्वांटम थ्योरी आ गई तो 1900 में, तो ये मैक्स प्लैंक ने एक सिद्धांत दिया। मैक्स प्लैंक ने कहा कि लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो लाइट है उसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। द लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स विच आर कॉल्ड फोटॉन, and the energy of one photon is equal to h nu, where nu is the frequency of that light, h is a constant known as Planck constant. तो this is energy of one photon. तो फोटॉन को उन्होंने बताया कि फोटॉन इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, सैक ऑफ एनर्जी, एक क्वांटा। तो जब वो एक कण के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में उसको मैक्स प्लैंक ने सपोज कर लिया, तो इसको आधार बना करके आइंस्टीन ने इसको सिद्ध कर दिया और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन निकाल दिया जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने इस मैक्स प्लैंक का ये जो अजम्पशन है इसी को लेकर के ये मान लिया। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को निकालने के लिए वी नो दैट इंसिडेंट फोटॉन इज कमिंग। अब इंसिडेंट फोटॉन जो आएगा तो उस इंसिडेंट फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है। एक फोटॉन 4-6 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं देगा। फोटॉन इज लाइक ए पार्टिकल। जब फोटॉन एक पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहा है, वो एनर्जी का पैकेट है, अलग अलग है। जो लाइट निकल रही है फ्रॉम एनी लाइट सोर्स, तो फोटॉन्स आर कमिंग फ्रॉम लाइट सोर्स इंटरमिटेंटली, नॉट कंटिन्यूसली। वो एक एक कण ऊर्जा के बंडल्स के रूप में दे आर कमिंग आउट। तो जब वो ऊर्जा के कण हैं, ऊर्जा के बंडल हैं, तो वन फोटॉन कैन इमिट वन इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन। तो जब एक फोटॉन आया और किसी भी मेटल पर पड़ा, तो द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज यूज्ड अप इन 2 ways। फोटॉन एनर्जी जो एच न्यू है, ये 2 ways में प्रयोग होती है। एक तो टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, टू लिबरेट और लिबरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी जाती है किसी भी मेटल को, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन दैट इज W। वो एनर्जी यहाँ यूज अप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, और बाकी की जो एनर्जी बचती है उस फोटॉन की, दैट इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस एनर्जी is used up as kinetic energy। इलेक्ट्रॉन। तो 2 काम में ये खर्च होती है। जो फोटॉन की एनर्जी है दैट इज यूज्ड अप इन 2 पार्ट। पहली तो ये कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो 1 फोटॉन इज यूज टू लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन। और जो फोटॉन की एनर्जी है दैट इज यूज इन 2 पार्ट। अगर इस फोटॉन की ऊर्जा कम होगी तो यहीं खर्च हो जाएगी, अगर ज़्यादा होगी तो इसको लिबरेट करेगा और जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। तो जो एनर्जी है फोटॉन की दैट इज यूज्ड अप इन 2 ways। देयरफॉर h nu is equal to W plus kinetic energy, maximum kinetic energy of the electron। 2 रूप में काम में आती है। We can, this is 1। If
the minimum value of the frequency is incident of this surface, तो इलेक्ट्रॉन केवल लिबरेट हो पाएगा। और जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो इफ न्यू इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देन द एनर्जी विल बी ओनली इक्वल टू द वर्क फंक्शन, नॉट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, केवल इसको लिबरेट कर पाएगा। तो मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी की लाइट होती है वो केवल इसको लिबरेट करती है, एंड दैट इज गिव्स ओनली वर्क फंक्शन। तो इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट light, if frequency of incident light nu is equal to nu 0, then Ek is equal to 0, तो फिर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो इस फोटॉन इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस पर, उसकी एनर्जी का दो भागों में वो यूज्ड अप होती टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच न्यू इक्वल टू कार फलन यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इफ फ्रिक्वेंसी सच दैट ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी लिबरेटेड, it means that is the threshold frequency, or when the frequency of the incident light is equal to the threshold frequency, the energy of the photon is equal to the work function of the metal. तो nu then Ek is equal to 0, क्योंकि केवल इसको एलिमिनेट कर पाएगा। तो nu is equal to nu 0, Ek is equal to 0, putting in this equation in 1 h nu 0, h nu 0 is equal to W plus 0 because kinetic energy 0, and therefore W is equal to h nu 0। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग इन 1 Ek is equal to h nu minus W, Ek is equal to half mb maximum square kinetic energy, h nu 0 या nu minus nu 0। This is the Einstein's photoelectric equation, Einstein photoelectric equation. Now this photoelectric equation satisfies the photoelectric emission laws. First, that depends upon the intensity of light. The intensity of light means number of photons. As the intensity increases, number of photons increases, because one photon liberates one electron, therefore the number of electrons, photoelectrons, are directly proportional to the intensity of light. Intensity of light means the number of photons. तो जो पहला लॉ है कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट, वो इस बात से प्रूव हो जाती। सेकंड है depends upon the frequency. Now we know that the energy of the photon depends upon the frequency, directly proportional to the frequency. As the frequency rises, the energy of the photon rises. The work function is fixed. Therefore, as frequency increases, the maximum kinetic energy also increases. तो सेकंड जो क्वेश्चन है लॉ है कि the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident light. Incident light की frequency जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा kinetic energy होगी इलेक्ट्रॉन की। और थर्ड है कि if the frequency is less than a minimum frequency known as threshold frequency, then no electron can be emitted. Now threshold frequency is 0. If the frequency of the incident light is less than nu 0,
That is, if nu is smaller than nu 0, then nu minus nu 0 is negative. This is smaller than this, and therefore this is negative. The kinetic energy is never negative. It means the light frequency more than threshold frequency can emit the electron from a surface. Because we have supposed that these are tiny packets of energy, तो जो ये रेडिएशंस हैं, जो लाइट है उसके अंदर वो क्वांटा है, फोटॉन्स है. फोटॉन्स आर जस्ट लाइक पार्टिकल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि वन पार्टिकल यानी वन फोटॉन इमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, और जब वन फोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो तुरंत उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है. व्हेन द पार्टिकल्स कोलाइड विच ईच अदर, देयर इज नो टाइम लैग इन ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी. केवल वेव्स जब किसी चीज़ से पड़ती हैं तब एनर्जी ट्रांसफर होने में टाइम लगता है. पहले ऑब्जर्व होगी तब उसके बाद, लेकिन व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड विद अदर पार्टिकल द एनर्जी इज इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड एंड देयरफॉर देयर इज नो टाइम लैग. तो जो भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लाज हैं वो आइंस्टीन के जो इक्वेशंस है उससे हम इसको प्रूव कर लेते हैं. Now photons, we know that photons are like particles, light particles. So something about photon, they emit from the light source. The speed of the photons is 3 × 10⁸ meter per second in free space. Frequency is equal, then energy of the photon is equal, because energy is equal to h nu. If the photons penetrate the other medium, frequency remains unchanged, but their wavelength and speed change. Rest mass of the photon is 0. Photon is neutral particle. Now matter waves. Max Planck said that using quantum theory, that the light consists of small sacs of energy, या small quanta called photon. And Einstein, using mass energy equation, mass energy equation E is equal to mc square, and we know that the energy of the photon is equal to h nu, and hence mass m is equal to h nu upon c square, or m nu hc over c over lambda c square. Therefore mass of the photon comes out to be h over c lambda, and the momentum p is equal to mc, c is light, velocity of light, is equal to h over lambda. Einstein concluded that like matters, the photon contains mass and momentum. It means the waves and particle, both nature is present in light. Then de Broglie said that sometimes the light is in the form of waves and sometimes it is in the form of particle. It means it has dual nature. From this momentum and mass, it has been proved that
the photon is like particle, though it is energy quanta, but this is like particle, it has mass and momentum. Then Louis de Broglie came to this conclusion that moving material particles must also be associated with a wave, because यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर एनर्जी। जो यूनिवर्स है वो एनर्जी और मैटर से बना है, और अगर एनर्जी पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है तो जो पार्टिकल्स हैं उसको भी एनर्जी से एसोसिएट होना चाहिए, एनर्जी की तरह व्यवहार करना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सिमेट्री इन द नेचर, एंड देयरफॉर दिस momentum and mass in photon, and there should be a wave associated with moving particles. Here we see that for photons the momentum is h over lambda and the mass is h over c lambda. And in the same way, if a particle moves with velocity v, then from this and this, then momentum of particle P is equal to h over lambda, or lambda is equal to h over p, which is equal to h over m into v. Lambda is wavelength associated with particle of mass m and velocity v. This wave is matter wave, or de Broglie wave. And this wavelength is known as the de Broglie wavelength or matter wavelength. This is wavelength for any matter particle that is moving with velocity v containing mass m. तो जब ऊर्जा का पार्टिकल का मोमेंटम समवेग हो सकता है तो फिर पार्टिकल के से संबंधित भी वेव हो सकती है, and this wave, because this wave is related with the matter, this is called matter wave. Now we can calculate the wavelength for the electron. अब ये तो हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस कि जो हमारी वेवलेंथ है de Broglie वेवलेंथ वो टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती। तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 3/2 kT एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P ऑफ स्क्वायर अपॉन 2m, P स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर अपॉन 2m इसकी जगह रखा, 2 से 2 कट गया, देयरफॉर P इक्वल टू √3m kT।
Putting this value of P in lambda is equal to h upon P, de Broglie wavelength lambda is equal to h upon under root 3m k under root t. It means it is directly inversely proportional to the under root t. टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगी, टेम्परेचर घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये जो मैटर वेव है ये तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं, मूविंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स मूव करेंगे इन मूविंग स्टेज दे विल बी एसोसिएटेड विद ए वेव, उसकी वेवलेंथ है ये। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उसकी वेवलेंथ का क्या फार्मूला होगा। तो मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया विप वोल्टेज द्वारा, तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी v इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसलिए इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉनिक आवेश इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम, वी की वैल्यू रख दी, एम से एम कट गया तो अंडर रूट के अंदर एम आ गया। ये तो इसका फार्मूला हुआ, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव का वैल्यू है। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं एच इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34, इलेक्ट्रॉनिक आवेश इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तब ये अगर वैल्यूज़ को रख दें तो इसकी वैल्यू आएगी 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है इसकी वेवलेंथ की, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज़ एक्सेलरेटेड। अभी अगर चेंज होता रहेगा तो उसकी तरंग नहीं, उसकी जो वेवलेंथ है दैट विल आल्सो बी चेंज। दैट्स